Good morning, students. Now today we will learn statistics. Now in that we have already started exercise 2.1, right? In that let us take sum number 6. Fifth we have done, fourth बाकी है वो हम बाद में करेंगे. Before that let's solve sum number 6. That obtain an inclusive continuous frequency distribution from the following data. You must have learned this in your 9th and 10th standard also, right? So same method only we have to follow over here. Question is obtain inclusive continuous frequency distribution from the following data. Now first of all, इंक्लूसिव डेटा मीन्स जो हमें डेटा दिया है वही उसमें इंक्लूड होगा, उसके आगे वाला डेटा उसमें इंक्लूड नहीं होगा. सो दैट इज़ inclusive data, right? First of all, here table is given. In these two rows, lower boundary point or more than and continuous frequency is given. तो इसमें से हमें बनाना क्या है? बनाना है हमें classes, that is continuous frequency distribution, and we have to convert this cumulative frequency into the frequency. Now first of all, cumulative frequency means addition of the above data, that is called as cumulative frequency. Now how can we prepare continuous frequency? Now see, sum number 6, lower boundary point, which is this is already given in the sum, this one is also given in the sum, right? ये दोनों के बेस पे हमें क्लासेस बनाना है और ये फ्रीक्वेंसी बनानी है. ये now how do we can frame classes? Now our first lower boundary point, that is 44.5 is given. So in this 44.5 we add 0.5, so that becomes 45. And इसके नीचे वाला जो दिया है lower boundary point from in that 44, that is 49.5 is given, so that is upper limit. तो उसमें हम 0.5 लेस करेंगे तो बन जाएगा 49. ये लोअर बाउंड्री पॉइंट, ये अपर बाउंड्री पॉइंट, लोअर बाउंड्री पॉइंट में 0.5 ऐड करेंगे, इसमें 0.5 लेस करेंगे. सो अवर वैल्यूज बिकम्स 45 एंड 49. सो अवर इनिशियल क्लास मीन्स स्टार्टिंग क्लास बिकम्स 45 to 49. तो हमारा पहला क्लास बन गया 45 to 49. नाउ ये 49 to 49 में 45 दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड एंड 49 दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. बोथ द वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड. तो डिफरेंस कितना बनेगा? 45, 46, 47, 48, 49. 5 का गैप पड़ रहा है, राइट? तो हर एक क्लास में हमें 5 का डिफरेंस ही लेना है. तो 49 से आगे 50 प्लस 5 तो 50, 51, 52, 53, 54. तो 50 to 54, राइट? दिस इज आवर सेकंड क्लास. 54 से नेक्स्ट, सो दैट बिकम्स 55. Now we can do this working for all of this value, but that is time consuming. तो ये एक से ही पता चल जाता है कि हमारे क्लासेस कितने बनते हैं. तो 50 to 59, फिर आगे और 5 का गैप, फिर और 5 का गैप, इस तरह से लास्ट में ये 80, राइट? 49.5 प्लस 0.5 दैट बिकम्स 80. तो 80 से आगे 5 तो 80, 81, 82, 83, 84, 5 तो 84 तक, right? So this is how we can frame classes for the inclusive continuous frequency. Now in this sum CF is given, we have to convert this CF into the frequency. CF में किस तरह से करेंगे हम? इसमें से ये लेस करेंगे, लेस करते जाएंगे इसमें से ये. तो 500 to 470 comes 30, 470 to 390 comes 80, 390 to 290 100, 290 to 240 50. लास्ट में ये देन 240 माइनस 90 कम्स 150, राइट? 90 माइनस 10 कम्स 80, 10 माइनस 0 कम्स 10. अभी लास्ट का ये बचा क्लासेस तो उसमें 0 आएगा. नथिंग इज गिवन, दैट मीन्स 0, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर इंक्लूसिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न, राइट? तो ये सम 2-3 बार रिवाइज करके प्रैक्टिस कर लेना.
Now the next sum number 7. Obtain an exclusive continuous frequency distribution from the following data. इसमें inclusive बनाना था, इसमें exclusive बनाना है. Right? Now first of all here less than is given and cumulative frequency is given. From this less than we have to frame continuous means classes और ये CF को हमें frequency में convert करना है. Now exclusive continuous frequency distribution means previous data is included in the current data. That is called as exclusive continuous frequency distribution. कि ये जो पहले वाला डेटा है वो यहाँ ना होके यहाँ पे ऐड होगा. So that is exclusive continuous frequency distribution. Now first of all in the sum less than values are given, CF is given. नाउ इसमें थोड़ा वर्किंग अलग है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट क्लास लेंथ. तो अवर फर्स्ट वैल्यू दैट इज 30, सेकंड वैल्यू दैट इज 35. तो 35 माइनस 30 कम्स अवर 5 क्लास लेंथ. राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ द क्लास. सो 30, ये वाला 30 पहला क्लास बनाएंगे किस तरह से. फर्स्ट वैल्यू 30, क्लास लेंथ माइनस 5, सो फर्स्ट वैल्यू कम्स 25. राइट तो 20 और अब 5 का गैप है तो 25 प्लस 5 कम्स 30. नाउ सेकंड क्लास दिस इज इसको ले 35 माइनस 5 कम्स 30. 30 प्लस 5 35. सो 30 to 35 इस तरह से सारे क्लासेस बना देंगे. समझ में आया. थर्ड वाला 40 माइनस 5 कम्स 35. 35 प्लस 5 40. सो 35 to 45 दिस इज अवर थर्ड क्लास. इस तरह से यहाँ से -5 लेस करके क्लासेस में ये अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ के लिए हम 5 का गैप ऐड करते जाएंगे. नाउ वी कन्वर्ट दिस कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी इनटू द फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू वी कैलकुलेट दिस. 0, 17, 25 दैट मीन्स दिस इज CF इज गिवन. इसको हम फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नाउ फॉर द एक्सक्लूसिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन वी गो रिवर्स. ये डाउनवर्ड से जाएंगे, नीचे से हम लेस करते जाएंगे इस तरह से. 60 माइनस 59 कम्स 1. 59 माइनस 57 2. 57 माइनस 54 कम्स 3. 54 comes 48 comes 6. 48 minus 40 comes 8. 40 minus 25 comes 15. 25 minus 17 comes 8. And 17 minus 0 comes 17. And last one is 0. Nothing is given, that means 0. तो मोर देन में हम ऊपर से लेस करेंगे, लेस देन में हम डाउनवर्ड से लेस करेंगे. राइट सो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना. नाउ इन द होमवर्क एक्सरसाइज 2, लास्ट एक्सरसाइज इन द सेक्शन नंबर D. सेक्शन नंबर D सम नंबर 10 and 11. 2 सम्स आर इन होमवर्क. ये 2 सम्स ऐसे ही है जैसे हमने आज ये 2.1 में से किए. सो दिस इज़ फॉर द प्रैक्टिस ओनली. So this is your homework for today, section D, exercise 2, sum number 10, sum number 11, right? Okay.